ٹھیک ہے 15 نومبر کا ہاں وہ انتظار بھائی آپ کا وہ انٹرویو آ جائے گا ان کا 1-2 دن میں آ جائے گا میں آپ اچھا یہ بتائیے یہ جو تحریک تفریح ہے پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم کے جواب میں مذاکرات کے حوالے سے اس پہ حکومت نے کوئی رسپونڈ کیا ضلع کو جواب ان کی طرف سے کوئی رپلائی آیا ہے کہ مثبت میری بات نہیں ہوئی اس حوالے سے. اچھا فریدی صاحب تاثر یہ ہے کہ یہ جو آپ تشریف ابھی لائے ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ٹیسٹر لگایا گیا ہے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے. تو ایک تو آپ کی ابتدائی طور پہ آپ کی کیا رائے، یہ ٹیسٹر کامیاب رہا اور دوبارہ ٹیسٹر لگانے کب آئیں گے آپ پنجاب پھر؟ اچھا میرے خیال میں ان کا جو رویہ میں دیکھ رہا ہوں تو اگلی دفعہ جو ہے یہ اٹک میں ہی کنٹینر لگا دیں گے. ہاں اور تجربہ تو بہترین رہا ہے، لوگ موبلائز ہو چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سسٹین کریں گے. اس کے لیے جو ہے ہماری ٹیم نے تمام نے پلان بھی بنا دیا ہے کل اور اس کو جو ہے جائزہ اندر میٹنگ میں آ رہے ہیں باہر. آپ کا بطور سی ایم ایک ورکنگ ریلیشن دیگر صوبوں کے سی ایمس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، جس میں مریم نواز شامل ہے، مراد شاہ صاحب بھی شامل ہیں. لیکن آپ کے خیال میں تلخیاں کو بہت زیادہ بالکل ہی آپس میں کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کا تعلق آٹے کی ترسیل کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے بھی آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ پنجاب سے آٹا نہیں جاتا ہے. ڈونٹ یو وانٹ کہ آپس میں بھائی میٹنگ ہو رہی ہے، اندر میں آ رہا ہوں 5-10 منٹ کے بعد. ورکنگ ریلیشن کا صبح کا ہمیشہ ہونا چاہیے. اس کے بعد 15 منٹ بعد لیکن یہ جس طرح سیاست کو لے کے جا رہے ہیں پوری کیمپین آپ کے اگینسٹ سوشل میڈیا پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایکچولی لانچ کیا. گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل ٹویٹر سے جب آپ کے خلاف اس طرح کی بات آئی، بہرحال یہ ان کا جو ہے وہ اگر آپ ایک گڈ جسچر دیں اور مریم نواز صاحب کو پشاور انوائٹ کر لیں. میں نے انوائٹ کیا اور پروٹوکول بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اس کو نہیں، مریم صفدر صاحبہ کو نہیں، میں اس منصب کو جس منصب پر وہ بیٹھی ہے، کیونکہ میں جمہوری بندہ ہوں اور میں اس کی تقریب کا خیال رکھوں گا. چاہے مریم صفدر صاحب آئیں، شہباز شریف صاحب آتے ہیں، ہمارے سی ایس آئی جی پی وہاں پر ہوتے ہیں، وہاں پر ہماری آئی ایس ایف اور ان سب کو پی ٹی آئی کو میں روکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کسی طرح کی ووٹنگ ان کے خلاف نہیں کرنی، کوئی جو ہے احتجاج نہیں کرنا. ہوا تھی سی ایم صاحب جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ، یہ جو ہوا پنجاب اسمبلی میں سبھی نے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈونٹ یو تھنک سو کہ جو مینا خان آفریدی صاحب کا ایک وہاں پر جواب تھا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور اس کے اوپر پنجاب کی طرف سے بھی بڑی ایجیٹیشن آئی نا کہ یہاں کے لوگوں نے بھی بڑا ایجیٹیٹ کیا کہ دس از ناٹ فیئر. آپ میری جان صبر کرنا، 1 منٹ صبر کر لیا اگر. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط بات کا جو ہے غلط ایکشن کا ریئیکشن ہونا آ رہے ہیں، 1 منٹ صبر کر رہا ہوں میں، اندر میٹنگ سے یہ نکل رہا ہوں. حقیقت ہے. لیکن آپ اس سیناریو کو دیکھیں کہ ہم نے باقاعدہ لسٹ دی اوکے میم. کہ ہمارے یہ ایم پی ایز، یہ منسٹرز، یہ ممبرز آ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کو. پہلے تو جس طرح میں باہر جو بیریئر لگائے اس سے آگے گیا تو پیچھے میرے سارے ایم پی ایز روک دیے، ان کو دھکے دیے پولیس نے، پنجاب پولیس نے. اندر گئے اسمبلی کا اسٹاف کھڑا تھا گیٹ پہ، مجھے بھی دھکا دیا. پھر میں اس نے جو ہے باہر جو اسمبلی کا اسٹاف کھڑا تھا تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا. میں نے کہا ابھی جو ہے یہ ان کا ارادہ خطرناک ہے اور بدمزگی ہو جائے گی. تو میں بیٹھ گیا. میں نے ایم پی ایس کو کہا کہ ہاتھ نہیں ڈالنا کسی پر بھی اور بس اندر آرام سے آؤ. میری گاڑی اندر آ گئی. ان کو پھر روکا، ان کو باہر گیٹ پر دھکے دیے بہت زیادہ. میں جس طرح گاڑی سے اترا ہوں تو وہ سارے جو صحافی تو نہیں کہوں گا لیکن جو آپ واٹس ایپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ان کی واٹس ایپ جن کو آیا تھا، چلیں کوئی ایڈ کر لیں. ہاں سہیلیوں کے دوست وہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ کوسچنس شروع کر دیے. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ مطلب یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. میں نے رسپونڈ بالکل نہیں کیا. انہوں نے 4-5 دفعہ وہی جو 3 سوال ہیں وہی دہرائے. آخر میں نے کہا بھائی جان کچھ اور بھی پوچھو، یہ صرف یہی بات پوچھ رہے ہو. تو میں گیا. اچھا وہاں پر ہمارے برکی صاحب ہیں وکیل جو ہیں، ان کو بری طرح انہوں نے مارا. مینا خان کو ہاں روک رہا تھا. جب مینا خان نے ان کو روکا اور مینا خان کو بھی دھکے دیے تو اتنے میں یہ صحافی آ گیا اور اس نے جو ہے یہ کوشچن پوچھ لیا. وہ آلریڈی جو ہے غصے میں تھا اور وہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا مقصد بڑا تھا. اور اس میں جو چکری انٹرچینج پر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ریسٹ ایریا پر ہمیں بلاک کر دیا گیا. تو وہاں پر میں نے سب کو بتایا کہ ان کا ارادہ کچھ اور ہے اور ہم نے اگر اپنے مقصد سے ہٹ کر کچھ بھی کیا
तो इस इवेंट का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, फोकस रहना है। शफी साहब ने वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड कर दिया था। हाँ, उसके बाद भी मैंने वहाँ पर बोला, भी कर दिया था। उसके बाद भी मैंने बोला, लेकिन नहीं होना चाहिए। इखलाक के दायरे से जो है किसी को भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन एक्शन का रिएक्शन आता है, ये तो जरूरी है। अच्छा तो सर, तफरीक साहब समझते नहीं है कि वो तो मेरा ख्याल है नहीं कहना चाहिए, तो वो तो चाहते थे कि आप इस किस्म की बात करें, आपने भी किया। तो अगर ये ना गुफ्तगू होती या वैसे कह देते चलें, या आपको जैसे आपने कहा यार ये सबको एक सवाल आया है, ये आते भी हैं हमें, इसमें सच भी है, जब आपने सच कहते हैं तो बेहतर होता है ये अल्फाज ना कहते। बेटी बहनें तो सब एक जैसी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और तो इसकी जो है कोई डिफेंस कर ही नहीं सकता। बहरहाल जो है बातों बातों में बात निकल जाती है, और एक्शन का रिएक्शन, गलत एक्शन का गलत रिएक्शन आता है, अच्छे एक्शन का अच्छा रिएक्शन आता है। अच्छा, सीएम साहब, ये गंडापुर साहब की आपसे पहले जब वो इस ओहदे पे थे तो चंद ऐसी मुलाकातें होती थी जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते थे। आपकी गालबन अभी तक कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं हो सकी कि जिसमें वो और फील्ड मार्शल आप दोनों ही एक जगह पर। नहीं, तो बहुत से लोग जब उनकी मुलाकात होती थी तो कहते थे कि जनाब आपने फलाम बात की, आपने फील्ड मार्शल को ये कहा, वो कहा या नहीं कहा। आपने कोई ज़हन में लिस्ट बनाई है कि आपकी जब फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी तो आप ये बात मुझसे कहेंगे? मैंने इमरान खान साहब की लिस्ट बनाई। इमरान खान से क्या मतलब? इमरान खान साहब से जब मिलूंगा तो, क्योंकि मैं इमरान खान साहब से जब भी मिलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा, हाँ, वो उसका रोब इतना ज़्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। नहीं, लेकिन आपके जो गिले शिकवे हैं, क्या आप वो फील्ड मार्शल के सामने रखना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली जो सूबे के मसाइल हैं वो मैं ज़रूर रखूँगा। सियासत के मसाइल, सियासत के मसाइल खुद हल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मेरा वजन सवाल है कि गवर्नर आपकी असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास हुई एक सूबे की, हज़ारा की, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबों की हामी है और ये पंजाब के अंदर भी होने चाहिए या केपी के अंदर भी मज़ीद सूबे बनने चाहिए? देखिए, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, और पार्टी पॉलिसी मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि खान साहब से मिलेंगे तो नई सूबों के बारे में उनसे बात करेंगे। मेरे ख्याल में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो है छोटे छोटे इलाके होने चाहिए। जितना इलाका छोटा होगा उतना आपका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं तो ये तासुब की बुनियाद पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली बुनियाद पर होने चाहिए। अच्छा सीएम साहब, आपने कहा था कि ऑपरेशन नहीं करने की इजाज़त देंगे, लेकिन ऑपरेशन तीरा में कहा जा रहा है कि हो रहा है और उसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि इसी पर अली अमीन गंडापुर साहब को बार बार इमरान खान साहब की भी हिदायत जाती रही कि ऑपरेशन रुकवाएं, तो आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है? देखें, हमने जिरगा किया, अमन जिरगा, उसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हमारे जो हर मकतबा फ़िक्र के लोग थे, हमने उनको मदऊ किया, एक छत तले सबको बिठाया। 15 नुकाती एजेंडा में ये भी था कि कोलेटरल डैमेज हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा और मिलिट्री ऑपरेशन जो है किसी मसले का हल नहीं है। ये तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम क़ुव्वतें जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं उस पर एग्री हुए। उसका इम्पेक्ट कम करने के लिए बाहर जिस तरह हमारे मेहमान दो PTM के दोस्त थे और बाकी तकरीबन 4 उनमें 2 स्टूडेंट्स थे, 6 बंदों को उन्होंने उठा लिया। तो इस जरगे का इम्पेक्ट ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की। मैंने उधर भी उनको कहा, मैंने कहा यार तुम लोग दिमाग काम कर रहा है, तुम ये चीज़ ख़त्म कर रहे हो, अपने लिए मसले पैदा कर रहे हो। ये तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें और जितने भी ये लोग हैं ये एग्री हो गए एक चीज़ पर, तो आप लोग इनके साथ बैठे ताकि कोई हल निकले इस चीज़ का। जो 22 मिलिट्री ऑपरेशन आप कर चुके हो, 22,000 से ज़्यादा IBOs आप कर चुके हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और उसका हल नहीं निकल रहा। अभी भी जो है 2011-12 में भी 4,200 दहशतगर्द थे, अभी भी जो है ये ब्रीफिंग देते वो 4,200 दहशतगर्द थे। तो आप कर क्या रहे? मतलब ये मिलिट्री ऑपरेशन, ये कौम का पैसा आप जो खर्च कर रहे हो, ये किस चीज़ पर खर्च कर रहे तो हो? आपने ये जो बंदे मिसिंग हुए हैं उनके लिए कोई राब्ता किया? किससे राब्ता किया कि किधर हैं ये हाँ मैंने किया। PTM के जो लोग, अच्छा, जो हमारी KP की इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, इस्लामाबाद से लोग हैं। अब इस्लामाबाद में किससे रब्ता करें ये पता नहीं है, लेकिन मैंने बहरहाल उनको कहा हुआ है। और मैंने FC का हमारा जो FC चेक पोस्ट पर खुदकश हुआ, हमारे वहाँ जवान शहीद हुए, उनके जनाजे में मैं था, तो मैंने वहाँ पर कोर कमांडर साहब को ये बात कही। मैंने कहा देखें,
मैंने आपको उसी दिन कहा कि इन बंदों को रिलीज़ कर दे, वरना ये जो है हेडेक हमारे लिए भी बन जाएगा और आपके लिए भी बन जाएगा। मैंने कहा 78 साल में यूनिवर्सिटी कैंपस पेशावर में, जहाँ पर हमारी 4-5 यूनिवर्सिटी हैं, इधर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगा। आप लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से और ये गलत हरकत की वजह से 78 साल बाद वहाँ आप लोगों के खिलाफ नारे लगे। तो उन्होंने कहा कि कौन सा नारा लगा? मैंने कहा बस वो नारा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मीना खान से फिर वो नारा उनको कहा कि ये नारा लगा। मैंने कहा सेक्टर कमांडर को भी पता है, ये भी हैं। बहरहाल ये इनके साथ मसला ये है कि ग्राउंड पर ये होते नहीं हैं, सियासी लोगों से और जो मतलब हर चीज़ पर जिनकी नज़र होती है उन लोगों से होती नहीं है। इन्होंने अपने लिए सरकारी लोग रखे होते हैं, मतलब इलाके का जो है एक बंदे को मशवरा कर देते हैं कि तुम बस हमारा काम करो, हमारा उनसे ही मशवरे लेते हैं, तो वो उनको समाचार का रिपोर्ट ही देगी। मैंने कहा कि आप लोग जो है जनरल पब्लिक से मिलें, सियासी लोगों से मिलें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लोगों की नफ्स क्या कहती है। तो आते हैं इसकी तरफ के मिलिट्री ऑपरेशन, तो सिर्फ पहले ये हमारा मौक़िफ़ था, अभी पूरे KPK की जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कर रहे हैं तो ये अपनी बिना पर कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। में क्या गवर्नमेंट ने इजाज़त दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। जीरा के हवाले से भी खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ लोग कंपनसेशन तक तय हो चुकी है। नहीं, देखिए कंपनसेशन जो ऑलरेडी जो हमारे इन्होंने वादा किया था, हमारे एक बकाखेल के लोग हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पे करना है, लेकिन वो पे नहीं कर रही, हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं और तकरीबन 7.5 अरब रुपए हम इजाफी पे कर चुके हैं बकाखेल के जो हमारे मुतासिरीन हैं। इस तरह जो IBOs बाजावर में हुए, वहाँ से लोग निकले क्योंकि वो ड्रोन अटैक से डरते हैं कि मतलब हमारा कोलेट्रल डैमेज ना हो, तो फेडरल गवर्नमेंट उनको पे नहीं करती। मतलब ऑपरेशन भी ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी ये कर रहे हैं, लोग भी हमारे तबाह हो रहे हैं, पैसे सूबाई हुकूमत दे रही है, ये हमें पैसे भी नहीं दे रहे इस तरह। तो फिर जो है अगर आप उनको पैसे देंगे तो ये ज़रूरी है कि आप जो सूबाई काबीना है उससे पास करेंगे, तो वो उस बिना पर हुआ है। सारे मामले में जो रूट कॉज है, जिसके ऊपर DG ISPR ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरा एक चार्ट उन्होंने दिखाया था, वो ये था कि जनाब वहाँ पे ड्रग्स का नेक्सस मौजूद है सियासी पुष्पनाही के साथ, और जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार होता है, असले की स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। बेहतर ना हो कि सूबाई हुकूमत खुद एक्चुअली वॉलंटियर करके कहेगी जी आइए बैठ के इन्हीं ड्रग माफिया के खिलाफ, इन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर्स के खिलाफ जो है बैठ के एक्शन लेते हैं, ताकि रूट कॉज ही खत्म हो जाए, वजह ही ना रहे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। ड्रग माफिया के खिलाफ हमने बेहतरीन कार्रवाइयाँ शुरू की, बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है, उसमें जो कॉल्स आई हैं वो हम बता नहीं सकते। बहरहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पर घूमती है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे लिए 100 साल के लिए वहाँ पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया, 1947 से लेकर 2047 तक। ये हमारे लिए कबायली अजला के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का साथ दिया था। अभी वहाँ पर जो है आप मतलब वो हमारा टैक्स फ्री जोन है। फाटा भी था और पाटा भी था। हाँ, पाटा पहले मर्ज हुआ था, अभी जो है फाटा मर्ज हुआ है। अभी जो 10 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड था हमारा, तो उसमें भी जो है इनको कहा गया था कि मतलब आप लोग ये सब कुछ करें। 100 बिलियन का वादा भी किया गया था, लेकिन उसमें जो है 700 अरब रुपए में अभी तक 168 अरब रुपए मिले, 532 अरब रुपए हमारा बकाया है वो कंपनसेशन जो सरताज अजीज रिपोर्ट में दिया था। अभी वहाँ पर जो ये सब कुछ हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया, ये 2 महीनों से हो रहा है। ये कब मर्ज हुआ? कबायली अजला 2018 में, ठीक है। 2018 तक वहाँ कौन था, किसके अंदर? सालों से होता है। तो सीएम अब आपके नहीं, इस चीज को जड़ से मैं तो पहले जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सालों से होता आ रहा है। ये जो फसलें वहाँ पर उगती हैं, इनकी सरपरस्ती में, इनकी ज़ेरी निगरानी 2018 के बाद भी, 2018 से पहले
जो बॉर्डर है वो मेरे साथ नहीं है, ये जो है अस्करी इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहाँ से जो स्मगलिंग होती है, चाहे वो डॉलर्स की हो, चाहे असली की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे XYZ जिसकी भी हो, वो इनकी निगरानी में होती है। मतलब वो निगरानी टाइट करे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आ रही है तो उसमें जो है कोई मुलविस है। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, मैंने ये कहा कि जिस अफसर की बॉर्डर्स पे ड्यूटी रही है उनके असासे ज़ाहिर करें, ताकि पता लगे कि कौन कितनी पानी है। आप में से शायद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिगरेट पीते होंगे, इम्पोर्टेड सिगरेट बैन आपको हर दुकान में मिल जाएगी। ये कहाँ से आ रही है? दुकानों पर चाके क्यों नहीं लगाए जा रहे? मतलब ये इलीगल है ना। हमारा अपना जो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि तो आपने बात है लाहौर में भी मिल रही है। नहीं, वो आप अपने सूबे की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं सिचुएशन है तो वो आप समझ लेनी है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब बॉर्डर से अगर इम्पोर्टेड सिगरेट आ रही है तो ये सुहेल अफरीदी लेकर नहीं आ रहा, ठीक, ये कोई और लेकर आ रहा है। अभी ये तमाम जो सूरत हाल है, इसमें हम इनको ये कहते हैं कि आप बैठे, पॉलिसी बनाए, जाम पॉलिसी बनाए। नेशनल एक्शन प्लान है, बंद कमरों में ना बनाए, हमारे साथ मिलकर बनाए। हम आपको वो तो बना सिग्नेटरी आप उसके, PTI सिग्नेटरी है उसकी। सर उधर उस वक्त जो है वो नहीं था, ये दहशतगर्द नहीं लाए गए थे, उस वक्त PTI दहशतगर्द नहीं लाए गए थे। 2014 के बाद बने 2014-2018 में जो 2022 में फिर हमारी हुकूमत गई, उसके बाद जो है डील हुई, दहशतगर्दों को लाया गया, दहशतगर्दों को लाया गया। उसमें PTI सिग्नेटरी नहीं, ठीक, उसमें ये सिग्नेटरी हमें बिठाएं। जो भी हो, इससे आप मुल्क के हालात बेहतर करने हैं ना। मैं दावा देता हूँ कि ये नेशनल एक्शन प्लान बनाए, हमें उसका हिस्सा बनाए, हम मशवरे देंगे कि क्या करना है। आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? ड्रग्स के अगेंस्ट हम इतना एक्शन ले रहे हैं, ये 2 महीनों में जो एक्शन मैंने लिया है, इससे पहले जो है किसी ने नहीं लिया था। इंक्लूडिंग नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है ये फेडरल हुकूमत की वजह के लॉ के अंदर हमें इजाज़त मिली है। इस तरह नहीं है कि मतलब हम जो कितनी देर तक? अच्छा, मैं 2047 तक, तो 2047 तक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को नॉन हाथ नहीं कस्टम लगाएगा। जरूरी तो नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं आती, ठीक है, चमन से आती है। चमन से आती है। चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कितना रास्ता है? ठीक, कौन वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? वहाँ पर आ गए, आप वहाँ तक नहीं रोक रहे, ठीक है। वो जो है वो एरिया, उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर जो है हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते, तो वहाँ पर तो अलाउड है, वहाँ तो चलती है। लेकिन अटक के पुल के ऊपर रुकी जाती है ना। पंजाब में नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं घूम सकती, पकड़ी जाती है, एक्साइज वाले पकड़ते हैं। ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते अगर आप करना चाहिए, लेकिन आप मुझे उसको आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2047 तक तो कम से कम इनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। आप 4,758 अरब रुपए जो हमारा बकाया है, आप वो दे दें और ये बंद हो जाएगा। वो दे। मेरे आपको बता दें, कोई तो कंपनसेशन हम अपनी आवाम को देना। दहशतगर्दी भी ला रहे हो, ड्रोन्स भी कर रहे हो, मिलिट्री ऑपरेशन भी कर रहे हो, हमें अपना हक भी नहीं दे रहे हो। मैं पाकिस्तान को जो है सस्ती बिजली दे रहा हूँ, उसकी मद में जो है 2200 अरब रुपए से ज़्यादा मेरा वफाक बकाया है, वो हमें नहीं मिल रहा। हम जो है ऑयल एंड गैस दे रहे हैं, गैस जो है पूरे पाकिस्तान में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, KP में उसका जो है इशू आ रहा है। मेरा 200 जो मेट्रिक टन है, मिलियन टन MMT 200, उस पर मेरा काम हो सकता है। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 400 गैस का, वहाँ पर मेरे KP में जो है पूरा राजा साहब